لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له فرما یا اللہ یہ وبائی امراض جو آئے ہیں کرونا کی وجہ سے اے اللہ مقدس حج اے اللہ اس وبائی امراض سے یہ بھی متاثر ہوا اے اللہ لاکھوں فرزندان افراد پوری دنیا سے اے اللہ تیرے گھر پہنچتے تھے دیوانہ وار چکر لگایا کرتے تھے کبھی ملتزم سے چپٹ کر دعائیں کرتے تھے تو کبھی حتیم میں پہنچ کر دعائیں کرتے تھے اے اللہ عرفات کے میدان میں بھی کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے مزدلفہ میں بھی دعائیں کرتے تھے یا اللہ یہ وبا کیا آئی جس کی وجہ سے اے اللہ فرزندان توحید وہاں پہنچنے سے محروم ہو گئے تڑپ رہے ہیں کہ موقع ملے پہنچ جائیں لیکن اے اللہ روک دیا گیا یا اللہ یہ سب آپ ہی کی حکمتیں ہیں اے اللہ ہم نہیں جانتے اے اللہ سب کے اے اللہ ارادوں کو قبول فرما اے اللہ سب کے اے اللہ عزائم کو قبول فرما سب کے لیے اے اللہ آئندہ پہنچنے کے لیے راستے آسان فرما جلد از جلد اس وبا کو ختم فرما دے اے اللہ اس پریشانی کو ختم فرما دیجئے یا اللہ ہم پھر جیسے پہلے سے رہا کرتے تھے اسی طرح سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں اس کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ اب جو نئی کمیٹی تشکیل پائی ہے یا اللہ اس کے ذریعے خوب خدمت ہو جیسا حضرت نے فرمایا خدمت خلق بہت بڑی سعادت کی بات ہے یا اللہ اسے سمجھ کر حاجیوں کی اور خاص طور پر پوری انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ تمام ممبران میں پیدا فرما اور خاص طور پر ہمارے نئے چیئرمین جو رؤوف الدین کچہری والے صاحب کو آپ نے یا اللہ اس ذمہ داری عطا فرمائی ہے یا اللہ ان کو اس کی توفیق عطا فرما یا اللہ خوب خدمت خلق کو سامنے رکھ کر اور جذبے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ہاسپٹلوں کے بیڈوں پہ پڑے پڑے تڑپنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ آئی سی یو کے بیڈوں پہ پڑنے والے جو پریشان حال مریض ہیں سب کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ ہماری یہ ریاست خوشحال ریاست بنے یا اللہ یہاں ہندو مسلمان یا سکھ ہو عیسائی ہو سب آپس میں بھائی بھائی بن کر اے اللہ اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں اور نمبر 1 پوزیشن پر لے کر آئیں یا اللہ اس کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرمائی یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرمائیے یا اللہ یہ حج بھون یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ مریضوں کے لیے بھی یہاں انتظام کیا گیا ہے یا اللہ جو بھی مریض یہاں آئے یہاں سے صحت یاب ہو کر جائے یا اللہ یہ جو خدمت ہو رہی ہے اس خدمت کو بھی بے انتہا قبول فرمائیے جتنے افسران کام کر رہے ہیں سب کی اے اللہ حفاظت فرمائیے یا اللہ اور جو ڈاکٹرز بھی کام کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کام کریں اس کی توفیق عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین ایمانداری سے وفاداری سے خدمت کرنے کا موقع دیا ہے ہم خدمت کریں گے ہمارے پورے ممبر ان کو گھر کو جا کر دیکھیے تو آج الیکشن ہو کے 24 تاریخ کو الیکشن ہوا تھا جون کے تو تھوڑا ٹیکنیکل ایشوز تھے لیگل ایشوز تھے تو پھر کل سرکار نے اس کو کلیئرنس دے دی تو آج کل شام میں چیئرمین صاحب نے چارج لیا ہے سارے ممبران حج کمیٹی کے چارج لیے ہیں تو الحمدللہ آج ہمارے چیئرمین صاحب سارے ممبر اور ہمارے ایم ایل سی صاحب روی کمار صاحب آئے تھے اور یہ پروگرام ہمارے عمران مقصود صاحب کی دعا سے آج ہم لوگ
ये हज कमेटी का काम आज चालू किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर साल की तरह हज आसान हो और जो भी हाजी आता है तो यहाँ से खुशहाल आ जाए और वो खुशहाल आए। हज की खिदमत बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपसे पहले भी हाजियों की बड़ी खिदमत किया करते थे, पानी पिलाना और जो भी आते उनका सामान उठाना, उनकी खिदमत करना। आज के दौर में भी हम देख रहे हैं कि माशाअल्लाह हाजियों की हर एक खिदमत करने के लिए दिल व जान से कोशिश करता है। आज हमारे इस स्टेट के लिए नई कमेटी तश्कील पाई है जिसके चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरी वाले जो बीदर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इंतखाब हुआ है। उस पर मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि ये कोविड होने की वजह से हज को जो पूरी दुनिया से हुज्जाज पहुँचते थे उनको रोक दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अल्लाह रब्बुल जलाल पूरे आलम से हुज्जाज को वहाँ पहुँचने और दुआओं के करने और हज के अरकान अदा करने और उम्रे के अरकान अदा करने के लिए मौका अता फरमाएगा। मैं तमाम कमेटी के मेंबरान से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है। हमने कहा कि पार्टी वो जीतने से पहले है, पार्टी का नाम जो है जीतने से पहले है। जैसे ही आपको कोई ओहदा मिलता है तो आपको अब एक खिदमत गुजार समझकर खिदमत करना चाहिए, अब वहाँ पार्टी का कोई नाम ना आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी ये अरकान हैं तो वो एक खिदमत खल्क का जज्बा रखते हुए अल्लाह रब्बुल जलाल के इन मेहमानों की खूब खिदमत करेंगे। ये सिर्फ हाजियों ही का ही सेंटर नहीं बल्कि अब सरफराज साहब ने कहा कि कोविड सेंटर भी बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे काम यहाँ से अंजाम दिए जा सकते हैं और पढ़ने वाले तलबा के लिए यहाँ क़ियाम करा के यहाँ कोचिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे IAS कोचिंग हो या KS हो, तो सारे कोचिंग सेंटर्स यहाँ बनाकर साल भर इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई जो कमेटी तश्कील पाई है इन सारे कामों की तरफ तवज्जो देकर कौम को यहाँ फ़ायदा उठाने का एक मौका फराहम करेगी। अब भी जो चेयरमैन आए हैं ये भी माशाल्लाह अच्छी मेहनत करने वाले और ख़ुद बताए, और मैंने जब मुझसे कहा गया कि कुछ बोलो तो मैंने यूँ कहा कि खिदमत से खुदा मिलता है। और फिर ये भी कहा मैंने हज़रत सादी अली रहमा का कौल, मिन्नत मनाह की खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास अज़्व की खिदमत बिदाश्तत। ए वज़ीर तो बादशाह पर एहसान मत जतला कि मैं बादशाह का वज़ीर हूँ, बल्कि बादशाह का एहसान मान कि उसने तुझे वजारत के लिए रखा है। देखिए ये दोबारा टाइम हज कमेटी के प्रेसिडेंट BJP से हुए हैं। हमारे रऊफुद्दीन कचेरी वाले प्रेसिडेंट बने। उनके प्रेसिडेंट बनाने में हमारा जान परशाह जी, मोइनुद्दीन दी, हमारे कबीर, वैसा ही हमारा जनरल सेक्रेटरी सलाम, हमारा प्रेसिडेंट मुजम्मल बाबू, ऐसे सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता बहुत एफर्ट डाल के हज कमेटी के चेयरमैन जीतने में बहुत एफर्ट डाले। इसलिए BJP के दूसरी बार हज कमेटी के चेयरमैन हमारे कार्यकर्ता बने हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात बोलता हूँ, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन कचहरी वाले भी इधर है चेयरमैन, मुसलमान विरोधी नहीं है BJP। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने BJP में ही बने, और शाहनवाज हुसैन, अब्बास नकवी और नजमा हेपतुल्ला, ये सब शाहनवाज हुसैन, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट BJP में। ये सब मुसलमान हैं। ऐसे कैसे BJP मुसलमान विरोधी होते हैं? APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, केरल में गवर्नर मुसलमान के हैं। ऐसे कांग्रेस BJP को मुसलमान विरोधी बनाने में कांग्रेस बहुत अच्छा पॉलिटिक्स कर रहा है। इसलिए मैं उसको विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। कर्नाटक की कैबिनेट में कोई भी नहीं है। कर्नाटक में कैबिनेट में प्रोफेसर मुमताज अली खान थे,
वो जब मिनिस्टर थे कब हमारे चीफ मिनिस्टर ये बहुत बड़ा बिल्डिंग को पैसे दिए 42 करोड़ रुपीस हमारा स्टेट गवर्नमेंट येडियूरप्पा गवर्नमेंट दिए हैं। उसके वजह से ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बने हैं और 200 करोड़ के ऊपर कैबिनेट में और बजट में भी दिए हैं। बीजेपी कभी भी मुसलमान विरोधी नहीं है, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बी.एस. येडियूरप्पा जी मुख्यमंत्री का और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अनिल कुमार कटील जी का और हमारे एमपी अभी हाल ही में मंत्री हो गए भगवंत खुबा साहब का और हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट का, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी वजह से मैं आज हज कमेटी का चेयरमैन बना हूं। और इंशाल्लाह आने वाले दिन में हज कमेटी में हमारे मेंबर्स हम सब लोग मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात बता दूं, मैं पिछले इस हज कमेटी के अंदर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता लोग काम किए हैं। आप जानते हैं मीडिया वाले कौन कौन ऐसे हस्तियां हैं जो हज कमेटी के सीट पे बैठ के काम किए। वो चाह रहे थे कि बीजेपी का मैं चेयरमैन ना बनूं क्योंकि इलेक्शन हो चुका है पिछले जो 15 दिन पहले। हालांकि 15 दिन पहले मैं 7 वोट लिया, BM फारूक जी 5 वोट लिए, 2 वोट से मैं इलेक्ट हो गया और भी हमारे ही 2 वोट इनवैलिड हुए। तो लगभग हमारे 9 वोट थे, उनके 5 वोट थे। उसके बाद 2 वोट इनवैलिड होने के बाद भी मैं 2 वोट से जीता। जीतने के बावजूद भी वहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर के वो चुप अननेसेसरी बहुत ट्रबल किए, जैसा कि लॉ ओपिनियन के लिए लॉ डिपार्टमेंट को फाइल भेजा है, फिर वहाँ से ओपिनियन लिए, फिर वहाँ से लेके होम मिनिस्टर भेजा है, वहाँ से ओपिनियन लिए, फिर उसके बावजूद भी मुझे हाई कोर्ट जाके लेना पड़ा। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट को उन्होंने ओपिनियन के लिए भेजा है, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट एडवोकेट को मिले, वहाँ के जज लेके और सीधा लिखे कि आप इलेक्शन ऑफिसर ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, इलेक्शन हुआ, उसमें आप 2 वोट की विक्ट्री है, कि आप विनिंग कैंडिडेट हैं, इमीडिएटली आप जाके चार्ज ले सकते हैं। तो कल मुझे 11 साढ़े 11 के आसपास में मुझे सर्टिफिकेट मिला